Good afternoon, everyone. I welcome you back in the class of SP and CC. Today, we will continue with our chapter number 1, that is issue of shares, of part 2, secretarial practice. This is our fourth lecture. In the previous classes, we have seen the procedure for share allotment. There were 4 steps to open an bank account, to receive share applications, classification of share applications, share application and statement of allotment. Then we saw the procedure for share allotment, its meaning and its process. In the previous class, we saw certain legal restrictions that are being kept on allotment of the shares. If you want to allot the shares, you need to follow certain restrictions, and certain provisions are to be followed if you wish to allot the shares. There were 14 such provisions or restrictions which are to be followed, and I hope that you all must have revised those 14 restrictions. Afterwards, we saw that there was a topic called irregular and illegal share allotment. Then we saw irregular and illegal share allotment, right? In that, we will be doing, we have already done, irregular share allotment, we already did. Okay, and there were certain circumstances. There were 8 circumstances which, if in such circumstances, it will be called as irregular share allotment. What was irregular share allotment? Irregular share allotment was the allotment of shares where shares are allotted without fulfilling the statutory provisions and restrictions. के शेयर allotment हुआ बिना वो provisions और restriction को follow करे. Alright, then after there was a topic called effects of irregular share allotment. We saw that shareholder can get the refund of the amount which he already paid for the shares. Okay, but there was certain time limits given to such irregular share allotment. The first timing was that application for cancellation of share allotment can only be made within 2 months from the first statutory meeting. I told you that statutory meeting is given in section 165 of Companies Act, where they have asked that this meeting held once in a year, once in a lifetime of the company. When the company issues the new shares, at that time they make the statutory meeting. Then there was a second criteria. Okay, what if the company has conducted the statutory meeting before and later on the shares were being allotted? तो उस केस में जब स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, राइट, और उसके बाद शेयर का अलॉटमेंट है, तो उस केस में क्या होगा? विद इन 2 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, जिस दिन अलॉट हुए उसके 2 महीने तक आपको एप्लीकेशन कर देनी है कि ये शेयर अलॉटमेंट इरेग्युलर था. And the third thing is directors will be personally liable to the company and also to the shareholders. Okay, if they have done it willfully, they have violated these provisions, or they have made others do such kind of things. This process of recovery of such losses must be initiated within 2 years of allotment of shares. ये 2 years तक ये सारी प्रोसीजर फिर ख़त्म हो जानी चाहिए. 2 साल के बाद अभी आप आओगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं. Then we are going to start with the illegal share allotment. Let's come to page number 89, everybody. 89 पे illegal share allotment are given. Allotment of share is considered illegal under the following circumstances. Which are these circumstances? See, illegal का मतलब क्या होता है? जो लॉ को वायोलेट करता है, राइट, लॉ के अगेंस्ट काम करता है. नाउ this is share buying. Share is what? Share allotment is something like a contract. Okay, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. किसके बीच में है?
शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में है. दिस आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट दिस कुड बी आस्क्ड इन 1 mark क्वेश्चन और इन द MCQs form. Okay, it is a contract between shareholders and the company. Now such contracts can be called a void contract only when all essential elements which are required for a valid contract are present. अगर essential elements नहीं है तो आपका contract valid कहलाएगा नहीं. It will be considered as वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी वैलिडिटी है नहीं, उसकी कोई इफेक्ट रहेगी नहीं. एनी अलॉटमेंट मेड इन द एब्सेंस ऑफ सच एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज इलीगल. इसको इलीगल बोला जाता है कि आप इलीगली काम नहीं कर रहे हो. अगर आप एलिमेंट्स को फॉलो कर रहे हो तो यू आर लीगल, इफ नॉट देन यू आर इलीगल. Share allotment is considered illegal from the beginning if the following elements are present. Now see this. See these elements you see, all such 4 elements I would show you that ये जो एलिमेंट्स है ये तुमको आएंगे नॉट जस्ट इन योर 12th स्टैंडर्ड बट जब तुम बीकॉम करोगे या तुम लॉ सब्जेक्ट चूज करते हो या एनीवेयर वेर एवर यू लर्न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कहीं पे भी अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, तुम सीख रहे हो या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, राइट? मे बी इन फ्यूचर यू माइट you keep on signing some contracts with other parties. If you are into business you may file on your own. If you are working somewhere your boss may ask you to sign to have a contract with. So अगर कोई भी छोटे से छोटे अमाउंट का या बड़े से बड़े अमाउंट का अगर कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये 4 एलिमेंट्स होने ही चाहिए. व्हाट आर दीज 4 एलिमेंट्स? ये तुमको 2 मार्क्स में के क्वेश्चन में आ सकता है. प्लस ये तुमको आगे इन योर फर्दर स्टडीज़ ऑल्सो दिस विल बी डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू. सो ये टॉपिक इज़ नॉट जस्ट फॉर दिस 12th स्टैंडर्ड बट इट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग इन until you study. So make sure that you keep these 4 elements in your mind very nicely. So the first one is offer. सबसे पहली चीज़ ना कोई तुमको ऑफ़र करना होना चाहिए. मैं तुमको ज़बरदस्ती कोई चीज़ें दे रही हूँ ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. मैं तुमको ऑफ़र दे रही हूँ कि ये मेरा प्रपोज़ल है, देख तेरे को पसंद आता है तो ले, नहीं आता है तो मत ले. ठीक है. द एप्लीकेंट, अभी शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे क्या ऑफ़र होगा? द एप्लीकेंट हु वांट्स टू बिकम शेयर होल्डर मस्ट हैव अप्लाइड टू कंपनीज फॉर परचेज ऑफ शेयर्स. सच एप्लीकेशन इज कॉल्ड एन ऑफ़र. देखो अगर मैंने कंपनी में शेयर्स अप्लाई ही नहीं करें, ठीक है, कि मेरे को सिर्फ पता है ये इसका प्रॉस्पेक्टस आया है इसके, पर मैंने अप्लाई ही नहीं किया ये शेयर में, तो वुड माई कॉन्ट्रैक्ट बी वैलिड? नो, क्योंकि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई ऑफर ही नहीं है. तो अगर टू मेक इट लीगल, ओके, एंड टू मेक इट वर्क, okay, there should be an offer. So applicants who wants to become shareholder must have applied to the company for purchase of shares. Such application is called an offer. तो वो उसको बोलते हैं application, right? उसको बोलते हैं offer, sorry. Number 2 is acceptance of offer. आपने कंपनी को application की, कंपनी ने आपको allot किए shares, so it is necessary that the company must accept the offer. When directors pass a resolution for share allotment, the offer is said to be accepted by company. Okay, कि जब ये डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करते हैं शेयर अलॉट करने का, जैसे पहले शेयर एप्लीकेशंस आती है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट का लेटर, अलॉटमेंट के लिए डायरेक्टर्स फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, सॉरी रिजोल्यूशंस साइन करते हैं. ठीक है. तो वो रिजोल्यूशन क्या कहलाता है कि हाँ, हमने आपका प्रपोजल जो आपने एप्लीकेशंस करी है, ओके, उनके पास 100 करोड़ एप्लीकेशंस आई है पर उनको 10 करोड़ एप्लीकेशन ही उन लोगों ने मंगवाई है, उसके सामने उनके पास 100 करोड़ आई है, राइट? तो फिर वो जो 90 करोड़ होंगे उसको वो रिजेक्ट करेंगे एंड ओनली 10 करोड़ एप्लीकेशन दे विल बी एक्सेप्टिंग. ओके, तो वो जो 10 करोड़
एप्लीकेशंस उन्होंने एक्सेप्ट करी तो दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र, तो वो वैलिड कहलाएगी। ऑफ़र हम करते हैं जिसको शेयर चाहिए, एक्सेप्ट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन पास करके करेंगे। ओके, दैट विल बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। थर्ड एलिमेंट, सो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि कोई तुमको ऑफ़र कर रहा है, दूसरी चीज़ उसको वैलिड कहलाएगी कि तुमको ऑफ़र किया और तुमने वो ऑफ़र को एक्सेप्ट भी किया। नंबर 3 इज़ इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र। अभी तुमने मुझे कोई चीज़ ऑफ़र करी, मैंने वो ऑफ़र ले लिया, पर मैंने तुमको ही नहीं बताती हूँ तो चलेगा कि मैं मन से ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अभी तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट किया है कि नहीं। सो इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र, द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन. When the allotment letter is sent to applicant by the company, it is said that acceptance of offer has been informed. क्या भेजना पड़ेगा, allotment letter भेजना पड़ेगा, इसको स्टार कर दो। allotment letter is sent to the applicants by the company. कंपनी भेजेगी कि ये शेयर अलॉटमेंट का लेटर है कि हमने आपकी जो एप्लीकेशंस आपने करी थी हमने वो उसको एक्सेप्ट करा है। ओके, afterwards, number 4 is consideration. Now consideration is said to be paid when the amount specified against allotment is paid by the applicant. This is something that you can say value, money. ओके, कि आप पैसे दे रहे हो तब जाके आपकी चीज़ें एक्सेप्ट होगी, राइट। सो कंसिडरेशन, उसमें कुछ अमाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट अबाउट दिस अमाउंट द कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट. So consideration is said to be paid when the amount specified against allotment is paid by the applicant. कि आपने जो एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम में जो पैसे देने थे वो आपने दे दिए है तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन यू हैव पेड. तो अगर आपने पैसे ही नहीं दिए तो फिर रिफंड या फिर जो भी चीज़ आप मांग रहे हो तो किस बेस पे मांग रहे हो. सो इफ यू हैव नॉट पेड एनीथिंग देन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर. ओके, सो ऑफर, acceptance of offer, informing the acceptance of offer and consideration. पहले ऑफ़र करो, वो ऑफ़र एक्सेप्ट करो, फिर वो एक्सेप्ट जो किया ऑफ़र उसको इन्फॉर्म करो एप्लीकेंट को एंड उसका कंसिडरेशन भी देखो. सो ये 4 एलिमेंट्स हैं, अगर ये एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, देन उसकी दूसरी कंडीशन वी विल सी दैट next what condition they have that is considered as illegal. Okay, so if shares are allotted against the provision of articles, the allotment is considered illegal. समझ लो कोई भी चीज़ AOA and MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ होना चाहिए नहीं. और ये क्लॉज अबाउट शेयर अलॉटमेंट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ द कंपनी, सो दैट्स वाई इट इज़ बीइंग रिटन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो कोई भी प्रोविजन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का वायोलेट हो रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इलीगल शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा. इफ़ shares are allotted, number C I am reading, if shares are allotted by individual directors it is said to be illegal. As per Companies Act, shares can be allotted by board of directors only. BOD allot करेगी, कोई एक डायरेक्टर नहीं allot करेगा. अभी सी ये चीज़ कब आती है, जब ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को शेयर्स देते हैं ना आपने, तब ये चीज़ आती है. ओके, कि तब उनको रिजोल्यूशन पूरा पास करना होता है कि सब डायरेक्टर्स उसमें साइन करेंगे और उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ ये शेयर्स इसको हम बेच सकते हैं, तो फिर उसके शेयर्स अलॉट होंगे. ना कि एक डायरेक्टर बोलेगा हाँ हम इस इंस्टीट्यूट को शेयर्स अपने दे रहे हैं, तो भाई तुम्हारी नहीं चलने वाली है, ये कंपनी के शेयर्स है तो कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, ना कि तुम अकेले कोई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई एक डिसाइड नहीं कर सकता. अगर ऐसा किसी एक ने वो शेयर्स दिए तो वो शेयर्स क्या कहलाएंगे, इलीगल शेयर्स हैं, उसका अलॉटमेंट जो हुआ है वो इलीगल तरीके से हुआ है, ऐसा माना जाएगा. नेक्स्ट इज नंबर डी, इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय वायोलेटिंग एसेंशियल प्रोविजन फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज.
अगर स्टॉक एक्सचेंज ओके कि कोई भी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है और उसके अगेंस्ट जाके अपने शेयर को अलॉट किया है, तो योर शेयर्स आर कंसिडर्ड एज इलीगल. आपके शेयर्स टू बी वो कंसिडर होंगे इलीगल. ओके तो किसी के भी इन शॉर्ट प्रोविजंस को वायलेट नहीं करना है, ना ही बोर्ड ऑफ ना ही आपको प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को क्रॉस करना है, ना ही स्टॉक एक्सचेंजेस के, ना ही कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर्स की मदद से आपको अलॉट करने हैं, ना कि एक डायरेक्टर की वजह से. ओके सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ द टीम, नॉट एन इंडिविजुअल. ओके illegal shares allotment is void from the beginning. void ab initio उसको बोलते हैं void ab initio कि ये जो इलीगल शेयर अलॉटमेंट होता है वो बिगिनिंग से ही, मतलब उसकी कोई इफेक्ट रहेगी नहीं. उसका चाहे पता अपने को बाद में चला है पर फिर भी उसकी फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली उसकी कोई इफेक्ट रहेगी नहीं, वो पहले से ही void कहलाया जाएगा. नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर द कंसिडर इट इलीगल. इसकी कोई अपने को एप्लीकेशन कोई शेयर होल्डर को करने की ज़रूरत नहीं है कि ये है ना इलीगल है या लीगल है. क्यों? क्योंकि ये उसने पूरे कंपनीज के ही रूल्स को वायोलेट किया है. तो विच इज़ चाहे आप एप्लीकेशन करो या ना करो, चाहे ये चीज़ आज पता चले या 5 साल बाद पता चले, ये इलीगल होगा तो वो इलीगली रहेगा. Okay, so no matter if you apply for it that this is illegal, or if you don't apply, it will be considered as illegal and it will have no effect at all. Okay, no application is required to be made to consider it illegal. Share allotment is illegal when the provision under the Companies Act or other acts have been violated. अगर कोई भी एक्ट या कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट होगा, अगर उसको वायलेट करके ये अलॉटमेंट करेंगे तो योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी void. It will have no effect at all. Okay, turn the page and you will reach to differentiate between the irregular and illegal अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. हालांकि दोनों जैसे अपने को तो सेम लग रहे हैं कि दोनों में अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं है, पर स्टिल देर आर मैनी differences. They look same but they have very different effects, they have very different meanings. Okay, they have very different liabilities to be considered. Let's read one by one. और ये बिल्कुल आ सकता है तुम्हारी एग्ज़ाम में, and it could be asked in 2, 3 or 4. Alright, 2, 3 या 4 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है. Okay, so considering the first point, so the first point is meaning. What is the meaning of irregular share allotment? See, share allotment made by violating the provisions of Companies Act regarding regular share allotment is called irregular share allotment, as we have discussed it before also, that by if you are violating the provisions of Companies Act, okay, which are being these 14 provisions which were already being given to you, if those provisions are being violated, then it is considered as irregular share allotment. Illegal share allotment is what when you violate any of the acts like Contract Act, जिसमें जो एलिमेंट्स दिए थे अपने को, ऑफर एंड कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर्स एंड एवरीथिंग, तो अगर वो एलिमेंट्स नहीं है, दैट मीन्स वी आर वायलेटिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, or any provisions of any other acts. If they are being violated, so it will be considered as illegal share allotment. So let's read it, that share allotment made by violating the provisions of lawful contract under Indian contract and provision of legal share allotment under Companies Act is called illegal share allotment. Okay, moving on to next one, that says that share allotment becomes irregular when allotment is made before registering prospectus, before the receipt of minimum subscriptions,
and share allotment is made without receiving required application money on share subscribed. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया या फिर प्रोस्पेक्टस को उन्होंने सबमिट नहीं कराया, ओके, बिफोर रजिस्टरिंग द प्रोस्पेक्टस, बिफोर रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, and share allotment is made without receiving required application money is called, in those circumstances it is considered as irregular share allotment. Now ये जो तुमको रीजंस दिए है उसमें यू कैन ऐड योर ओन रीजंस. जो सर्कमस्टेंसेस हमने पढ़े थे उनमें से जो देर वर 8 सर्कमस्टेंसेस, अमॉन्ग दीज 8 यू कैन राइट एनी एंड यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस द वे यू लाइक इट. Okay, next one, it is for illegal share allotment. Share allotment is considered as illegal when offer is not made by applicant, offer नहीं है, offer is not accepted या offer accept नहीं किया है, और acceptance of offer is not informed by the company, then it is absence of, or there is an absence of consideration. तो जो 4 तुम्हारे पॉइंट्स थे, राइट, कि एक था ऑफर, देन ऑफर एक्सेप्टेंस, देन इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफर और कंसिडरेशन. ये 4 चीज़ें अगर एलिमेंट्स ये 4 नहीं है तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल. ये उसके 4 सर्कमस्टेंसेज है और इसके देयर वर 8. ओके, सो रिमेंबर इन सच अ वे. और इसमें चारों के 4 तुमको लिख देना है. वाइल इन दिस इरेग्युलर शेयर में आप अपने हिसाब से वो 8 में से कोई भी सर्कमस्टेंसेस को पिक कर सकते हो एंड यू कैन राइट इट. ओके, इफेक्ट. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ irregular share allotment? Irregular share allotment is voidable at the option of shareholders and he is required to take certain steps within time limit for the same. कि voidable है मतलब void हो सकता है अगर कुछ उसमें अल्टर करके, अगर वो वैलिड मतलब उसके चांसेस है. voidable है मतलब कंफर्म void नहीं है, इट इज़ voidable मतलब ये void हो सकता है, अभी प्रूफ नहीं हुआ. प्लस उसमें आपको एक टाइम लिमिट जो दी थी, हमने लर्न करी थी, वो टाइम लिमिट भी वी हैव टू फॉलो एंड देन ओनली इट विल बी void. While in case of illegal share allotment, the allottee of share is not required to take any step. उसको कोई स्टेप लेना नहीं है for cancellation of allotment because such allotment is void from the very beginning. बिगिनिंग से ही वो void है क्योंकि वो इलीगल है. अगर कोई भी इलीगल चीज़ कंपनी में चलती नहीं है, इट इज़ void फ्रॉम द बिगिनिंग. void ab initio, I told you before also. void, void, void ab, put a dash and write ab, put a dash, initio, initio. void ab initio which means void from the very beginning. पहले से ही उसकी कोई इफ़ेक्ट कहलाई जाएगी नहीं. Effects on membership. Now what effect does a member have to face? Okay, membership ends by eliminating name of shareholder from register of members. register of member में से जो member जो होगा उसका नाम eliminate किया जाएगा. कब? if the shares allotted is considered void respect to irregular shareholders शेयर अलॉटमेंट. तो अगर उसका वॉइड ही कहलाएगा, सपोज जो उसने डिमांड करी है वो एक्चुअली सही है और इट इज़ कंसिडर्ड एज इरेग्युलर शेयर अलॉटमेंट, तो उसकी मेंबरशिप फिर हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब उसको निकाल देंगे. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप अंडर इलीगल शेयर अलॉटमेंट एज मेंबरशिप हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड. उनको मेंबरशिप मिली नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, पूरा void हो जाता है, राइट. इट इज़ void फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड दैट्स वाई देयर इज़ नो मेंबरशिप. दी नहीं है तो फिर उनको एलिमिनेट करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही नहीं है. ओके, देन लायबिलिटी. Responsible officers of the company for irregular allotment are liable to compensate the loss which is occurred to the company and the shareholders. Okay,
रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, जैसे हमको बोला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर स्पेसिफिकली जिसने ये किया होगा उसको वो लायबल होगा कि कंपेंसेट करे किसको, कंपनी को और उसके शेयर होल्डर्स दोनों को, जिसने जिसने भी सफ़र किया है उसको डायरेक्टर खुद उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसको कंपेंसेट करके देगा. While in case of illegal share allotment, no such steps are required to be taken under illegal allotment of share as there is no contract. कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं है तो आप किस बेस के ऊपर उसका वैलिडेशन मांगोगे उसका. तो दैट्स वाई देयर इज़ नो सच थिंग्स, नो लायबिलिटीज एट ऑल दैट इनकर्स, बिकॉज पहले ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. सो दैट्स वाई इट हैज़ नो इफेक्ट. Now next, so this was the difference between irregular and illegal allotment of shares. As I told you, it could be asked in any ways. 2 marks में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी it could be asked. Now next topic that we are going to start today is very important. It could be asked in your exam for 2 marks also. That is renunciation of shares. नाउ सी क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उसको भी कुछ शेयर्स, जब नए शेयर्स इशू होते हैं ना, तो वो अपने ही मेंबर्स को, ओके, मैं एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंबर्स की बात कर रही हूँ. सपोज मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, अभी कंपनी रिलायंस के ही दूसरे शेयर इशू कर रही है, ठीक है. तो कई बार कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर होल्डर्स को, अपने जो उसके मेंबर्स है, टू बेनिफिट कि उनको बेनिफिट हो, उसके लिए वो क्या करती है कि वो कई बार वो राइट शेयर्स इशू करती है कि आपके पास राइट है, क्योंकि आप पहले से मेंबर्स हो तो आपके पास राइट बनता है कि आप अभी जो नए शेयर्स आए उसका भी बेनिफिट आपको पहले मिले. तो इसीलिए वो राइट शेयर्स इशू करती है. तो वो राइट शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए. पर अभी कई बार कंपनी उनको चांस भी देती है कि पहले अगर जो राइट शेयर्स है जिनके पास, उनको अगर सेल करना है तो वो भी कंपनी अपने मेंबर्स को बोल सकती है. लेट्स रीड इट वन बाय वन एंड यूल अंडरस्टैंड. अ कंपनी कैन ऑफर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एडिशनल शेयर्स कॉल्ड राइट शेयर्स. क्या कर सकती है कंपनी? कैन ऑफर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, उनको एडिशनल शेयर दे सकती है. तो उसको बोलते हैं राइट शेयर. ओके, पहले राइट शेयर समझना ज़रूरी है, फिर रिनंसिएशन आएगा. रिनंसिएशन इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ राइट शेयर्स. राइट शेयर्स में एम्प्लॉय को ये मेंबर्स को क्या मिल रहा है? चांस मिल रहा है टू बाय द शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी. नाउ रिनंसिएशन इज प्रोसेस. Renunciation is a process where an existing shareholder can give up, वो अपने शेयर्स को क्या कर सकता है? गिव अप सम और ऑल शेयर्स ऑफर्ड एज राइट शेयर टू हिम इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. जैसे रिलायंस ने शेयर इशू करे, ठीक है, कि रिलायंस ने शेयर इशू करे राइट शेयर्स, कि क्योंकि मैं उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस के शेयर हैं, अभी रिलायंस कंपनी दूसरे शेयर्स इशू कर रही है और उसने मुझे राइट शेयर का यूज़ करने को बोला कि यू हैव अ राइट कि आप वो शेयर्स इशू कर सकते, आप ये शेयर परचेस कर सकते हो. तो फिर उसके लिए एक अलग से कोटा बनाते हैं. पर नाउ एज सच आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू बाय न्यू शेयर्स, कि मुझे फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ या कोई भी रीज़न से मुझे अभी शेयर नहीं खरीदने, पर आई कैन रिकमेंड इट टू समबडी एल्स, कि मेरे कोई फ्रेंड को मैं सजेस्ट मैं बोल सकती हूँ कि मैं मेरे राइट तेरे को रिनाउंस कर रही हूँ और तू मेरे बदले ये शेयर्स कंपनी तुझे दे सकती है. क्या लिखा है? रिनंसिएशन इज अ प्रोसेस वेयर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि मैं कैन गिव अप, मैं मेरे शेयर्स क्या कर रही हूँ? गिव अप कर रही हूँ, जो मुझे राइट शेयर्स मिल रहे हैं. सम और ऑल द शेयर्स, सपोज मुझे 100 शेयर का कोटा मिला है, तो मैं उसकी जगह मैं ऐसे बोलूँ 50 शेयर मैं जाने दे रही हूँ या 70 शेयर्स जाने देती हूँ, या सारे के शेयर्स मुझे नहीं खरीदने हैं. सो आई कैन गिव अप सम और ऑल द शेयर्स. ओके, सारे या कुछ शेयर्स मैं गिव अप कर रही हूँ, ऑफर्ड एज राइट शेयर टू हिम, जो मुझे राइट शेयर के तौर में मिले हैं कंपनी की तरफ से, इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, कोई भी दूसरे इंसान के फेवर में मैं वो दे रही हूँ.
The shareholder is expected to fill a form called the letter of renunciation of this. ओके के फॉर दिस दैट इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, शेयर होल्डर यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इज एक्सपेक्टेड टू फिल द फॉर्म, लेटर ऑफ रिनंसिएशन नाम का फॉर्म भरना है और वो भर के कंपनी को दे देना है. कंपनीज मेक प्रोविजन फॉर दिस इन आर्टिकल्स. कोई भी चीज़ AOA या MOA के खिलाफ तो जाएगी नहीं, और ये इंटरनल मैटर है, इसीलिए उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. तो द प्रोविजन फॉर दिस इज़ इन द आर्टिकल्स ऑल्सो. तो ये रिनंसिएशन का प्रोविजन आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए. A letter of renunciation is enclosed with the allotment letter itself. allotment letter के साथ ही उसको दिया जाता है. Okay, letter of renunciation is divided now into two parts. Okay, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. The first part is letter of renunciation in which the original shareholders sign. Original shareholders यानी मैं, कि मुझे साइन करना है, and state that he wants to renunciate some or all share in favor of certain person. कि उसको फिर मुझे लिखना है कि मेरे जो शेयर्स हैं जो मुझे आप राइट शेयर में दे रहे हो, तो मैं सपोज 100 शेयर्स है तो मुझे 70% शेयर्स मेरे, मतलब 70% शेयर 100 में से 70 शेयर्स मैं मेरे किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव्स को या किसी और को ये मेरे राइट्स जो है मैं रिनाउंस करना चाहती हूँ. सो आई राइट माई नेम ऑल्सो एंड द सर्टन पर्सन के जिसके लिए मैं ये राइट्स दे रही हूँ उसका भी नाम लिखना पड़ेगा. देन आफ्टर इट इज़ द सेकेंड पार्ट इज रिक्वेस्टेड, इज द रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर. सेकेंड पार्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर. शेयर अलॉट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है. द पर्सन इन हुज फेवर शेयर्स आर बी रिनंसिएटेड साइंस एंड रिक्वेस्ट द कंपनी टू अलॉट शेयर टू हिम. ओके, सेकेंड पार्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर. तो ये पूछ सकते हैं कि सेकेंड पार्ट ऑफ रिनंसिएशन फॉर्म इज फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर. द पर्सन हुज फेवर शेयर्स आर टू बी रिनाउंसिएटेड साइंस, मतलब जिस पर्सन को मैं दे रही हूँ मेरे शेयर्स वो साइन करेगा, एंड रिक्वेस्ट द कंपनी टू अलॉट द शेयर टू हिम. और उसको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को इसके शेयर्स आप दे दो. मतलब दैट शोज कि वो पर्सन भी विलिंग है लेने के लिए और मैं भी देने के लिए उसको विलिंग हूँ, कि वी बोथ आर विलिंग टू गिव एंड एक्सेप्ट द शेयर्स ऑफ योर कंपनी. ओके, तो ये एक कंसेंट लेटर की तरह हो गया, कि ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती उसको मेरे राइट्स दे रही हूँ. दे ऑल्सो नीड सच शेयर्स एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिनाउंस माई शेयर्स. ऑल राइट, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट सेज कंपनी decides a certain limit for sending द रिनाउंसिएशन लेटर. कि ऐसा नहीं है कि सारे उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया पर कोई उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेना ही नहीं चाहता, तो इतने भी सारे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी. एक लिमिट होती है रिनाउंसिएशन लेटर्स की भी, तो वो फॉलो करनी रहेगी. इफ़ द लेटर इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल शेयर होल्डर विद इन द टाइम लिमिट डिसाइडेड बाई कंपनी, तो कंपनी टाइम लिमिट भी देगी कि भाई इतना टाइम ही है तुम्हारे पास सोचने का, सालों साल नहीं मिलेंगे. तो इफ़ द लेटर इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल शेयर होल्डर विद इन द टाइम लिमिट डिसाइडेड बाई कंपनी, द कंपनी मेक्स appropriate notes in the statement of application and allotment. तो कंपनी उसकी appropriate note लिखेगी statement of application and allotment की. and when the list of membership is prepared, the name of other person is recorded as a member. और जब members की list बनती है तो जो नया शेयर होल्डर होगा कि जिसको ये राइट्स मिले, ये नए शेयर्स मिले, उसको हम लोग उसका नाम फिर उसमें ऐड किया जाता है. Understood? So this is the renunciation of shares. अभी ये renunciation of shares portion can be asked for 2 marks. So make sure that you prepare it. Anyone test होगी तो ये question तो होगा ही. So star कर दो उसके ऊपर. Alright? So this was about the renunciation of shares. Next one, it is statement of share allotment. What is the meaning of it?
A newly established companies invite the general public to subscribe to their shares in a public issue through a prospectus. You all know that company invites the shareholders through the prospectus, right? That general public gets to know about the shares through prospectus. So the पहला step जो होगा, it will be to invite public. After receiving applications in response to in this invitation, board of directors decide the basis of allotment of shares according to prevailing rules and regulations and decided. Then it is statement of share allotment. All right. शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? फर्स्ट विल सी द मीनिंग. न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज invites the general public to subscribe to their shares in a public issue through a prospectus. Whenever company wishes to issue the shares, it invites through the prospectus, right? Prospectus के through ही वो invite करती है. After receiving applications in response to the invitation, board of director decide the basis of allotment of shares. उसके बाद कंपनी क्या करती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे करना है, राइट? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर डिसाइड करते हैं. किस बेस पे वो करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस. जिस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करते हैं. एंड डिसाइड्स द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड टू रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स. और कितने शेयर्स कितने एप्लीकेंट्स को इशू करने हैं वो सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हु डिसाइड्स इट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. क्या डिसाइड करते हैं? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. किसके और ध्यान में रखते हुए? प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए. क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड्स द नंबर ऑफ शेयर्स ऑल्सो टू बी अलॉटेड इन द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स. हर एक एप्लीकेंट को जिसने जितना अप्लाई किया है तो उसका रेशियो क्या होगा या किस बेस पे वो अलॉटमेंट होगा, वो सारी चीज़ें, ऑल सच थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. A statement indicating number of shares allotted to each applicant. अभी definition आई. A statement from here. A statement indicating the number of shares allotted to each applicant. हर एक एप्लीकेंट को कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स मिले इज कॉल्ड अ शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट. तो तुमको अगर 1 मार्क में भी पूछा है तो तुम पूरा लिखोगे इसका. Alright, या फिर you can write it from here. After receiving application in response to this invitation की जगह क्या लिख देने का? Respond to the invitation या फिर prospectus का नाम लिख सकते हो. In such a statement, the name of applicant का name, address, number of shares applied for, number of share allotted, कितने अप्लाई करे थे, कितने अलॉट करे गए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें रखेंगे. डीमेट अकाउंट रखेंगे, डिपॉजिटरी आईडी रखेंगे, पैन कार्ड नंबर एक्सेट्रा आर मेंशन्ड. ऑलराइट, सो what things are being mentioned? That in such statement the name of applicant, तो पहली चीज़ name of applicant, address, number of shares applied for, number of share allotted, demat account, depository ID, permanent account number, that is PAN card number, these things are to be mentioned. तो ये सारी चीज़ें, ये नंबर अगर तुमको पूछे कि क्या चीज़ें मेंशन होती है तो तुमको आनी चाहिए. This could be asked in 1 mark question also. Nowadays such statement are prepared with the help of computer software. कंप्यूटर में ही ये चीज़ें क्वेश्चंस ऑलरेडी भरे होते हैं, ये फॉर्म्स ऑलरेडी बने होते हैं, एक फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी होता है, उसमें सिर्फ इन लोग को डिटेल्स भर देनी है एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल दे हैव टू डू. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, नाउ विल बी डूइंग द ड्यूटीज़. ओके, तो क्या ड्यूटीज़ है कंपनी सेक्रेटरी की विथ रिस्पेक्ट टू शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट के बेस के ऊपर उसकी क्या ड्यूटीज़ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अ कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉलोइंग ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट टू शेयर अलॉटमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट. अंडर व्हाट? कंपनीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी की ये ड्यूटीज़ हैं. फर्स्ट इज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ टू ओपन द एस्क्रो बैंक अकाउंट. एस्क्रो बैंक अकाउंट खुलवाना है. कहाँ खुलाओगे? स्केड्यूल बैंक में खुलाओगे. कैसे खुलाओगे? बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपनी सेक्रेटरी खुद से काम नहीं करता, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी हर बार लेनी पड़ेगी. सो विद द रिजोल्यूशन वुड बी पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको परमिट करेंगे उसके बाद वो स्केड्यूल बैंक में एस्क्रो अकाउंट खुलवाएगा. ड्रॉइंग एन एग्रीमेंट विथ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर द लिस्टिंग ऑफ शेयर. उसके बाद लिस्टिंग करवाने हैं शेयर्स उसको, इसीलिए उसके ऑलरेडी उसने अग्रीमेंट की बात कर ली होगी. इट इज़ जस्ट द साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट. ड्रॉइंग एन अग्रीमेंट विद रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स. Number 3 is drawing an agreement with various intermediaries like. उसके बाद अग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ तो करना ही है, ये पहले भी कंडीशन थी अगर याद है तो, कि अलॉटमेंट की कंडीशंस थी तो उसमें ये ऑलरेडी दिया था. अब ये फिर से आ रहा है. द ड्रॉइंग एन अग्रीमेंट विद वेरियस इंटरमीडिएटरीज लाइक लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, बैंकर्स टू द इशू, डिपॉजिटरीज, ब्रोकर्स एक्सेट्रा फॉर पब्लिक इशू. ये सारे क्या है? इंटरमीडिएटरीज. आई टोल्ड यू टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज फॉर पब्लिक इशू. तो ये सारे इंटरमीडिएटरीज हैं विच यू हैव टू रिमेंबर. ओके, तो इन सब के साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा. उनको एक कॉल कर दो और वो आ नहीं जाने वाले हैं. दीज आर द लीगल अथॉरिटीज, सो दे आर नीडेड टू हैव एन अग्रीमेंट. अ प्रॉपर लीगल अग्रीमेंट होगा तभी उनके कोई भी एक्ट को वैलिड करा जाएगा. अगर किसी के साथ भी अग्रीमेंट नहीं किया और फिर भी वो एक्ट कर रहे हैं आपके साथ, तो दैट मीन्स इट इज़ अ वॉइड, और यू नो द कॉन्ट्रैक्ट और द डील्स विच दे हैव डन आर नॉट लीगल, और उसकी कोई भी इफेक्ट रहेगी नहीं. Number 4 is fulfilling the statutory provisions of withdrawal of share application and closure of subscription list. कि कब शेयर एप्लीकेशन विड्रॉल होंगी और क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन कब उसको ख़त्म हो जाएगा ये प्रोसेस. तो ये सारी प्रोविजंस को भी कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करना रहेगा कि जितने दिन का टाइम अलॉट ही किया गया है उतना ही टाइम वो ले सकता है. प्रिपेयरिंग लिस्ट्स ऑफ एप्लीकेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज. कि एप्लीकेंट्स की क्या क्या लिस्ट है. रिटेल इन्वेस्टर्स कौन से हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कितने हैं, फिर दूसरे कौन से इन्वेस्टर्स हैं, तो प्रोमोटर्स को कितना शेयर्स दे रहे हैं. तो वो सारी चीज़ों का लिस्ट इसके पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास होना चाहिए. नेक्स्ट, नंबर 6 इट इज़ arranging meeting of board of directors for allotment of shares and preparing minutes of such meeting. minutes क्या होते हैं? मीटिंग के बाद, मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस हुई है उसकी एक समरी बनती है, उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग. तो कंपनी सेक्रेटरी को अरेंज भी करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग. वो अरेंज हो जाए, फिर वो मीटिंग में जो डिस्कशन किए होंगे उसकी समरी, जैसे जिसको बोलते हैं मिनट्स, वो भी CS को बनाने रहेंगे. Number 7 is informing applicants regarding the share allotment. Such information is given through SMS and email in present times. Okay, informing applicants regarding the share allotment कि कब होगा share allotment, और अगर हो गया है तो उसके बाद आपको मिला है कि नहीं है, वो सारी applicants को भी डिटेल देगा CS. Nowadays it is through SMS and emails. इन्फॉर्मिंग एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग नॉन अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स. अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं भी हुए हैं तो भी वो एक अपॉलॉजी लेटर भेज देते हैं कि वी आर रिग्रेटिंग दैट यू कुड नॉट गॉट आर शेयर्स. सो वो भी एक अच्छा एक जेस्चर कहलाता है दैट यू केयर फॉर योर इन्वेस्टर्स. सो दैट्स वाई वी हैव टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स दोज हु कुड नॉट गेट द शेयर्स. ओके, दोज हु कुड नॉट गेट द अलॉटमेंट. Number 9 is filing the share allotment statement with registrar of company. Okay, filing the share allotment statement, ये भी ROC को तो सबमिट करानी पड़ेगी ये सारी चीज़ें भी. ओके, तो ये शेयर अलॉटमेंट का लिस्ट जो बन गया जिसमें आप वी हैव रिटन सो मैनी डिटेल्स नो दैट
You have written all such details like its name, its PAN card number, depository ID, its address, and number of share applied for, and number of shares allotted, डीमेट नंबर. तो ये सारी चीज़ों वाला जो लिस्ट जो हमने बनाया, that is also to be submitted to ROC. Number 10 is releasing payment of underwriting commission. Okay, you have to releasing payment of underwriting commission if underwriting agreement has been entered into. तो अगर आपने underwriters को अपॉइंट किया है तो उनका जो कमीशन होता है, as I told you before also in your 11th standard it was discussed that underwriting का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं. ऐसे फ्री में आपको कोई गारंटी नहीं लेता, दे चार्ज फॉर यू. तो तुरंत ही जैसे अलॉटमेंट हुआ तो उनको भी जो उनका कमीशन होगा वो कंपनी सेक्रेटरी को पे करवा देना रहेगा. अभी वो CS अपनी पर्सनल सैलरी में से उसको नहीं देगा, बट कंपनी में एज एन एक्सपेंस दिखा के वो जो भी अंडरराइटिंग एजेंट होगा उसको दे देगा. Number 11 is releasing payment of as agreed upon remuneration to lead manager, depository, brokers, registrar to issue etc. तो ये जो सारे जो लोग आपके इंटरमीडिएटरीज थे, लीड मैनेजर्स, रजिस्ट्रार या बैंकर्स, जो भी थे, ये फ्री में काम नहीं करेंगे. उनकी कुछ फ़ीस होती है, उनका रेम्यूनरेशन होता है. तो वो रेम्यूनरेशन, उसका फ़ीस जो होगा, उसका पेमेंट होगा, वो भी उसको कंपनी सेक्रेटरी को रिलीज़ करवा देना है. गेटिंग द शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर अलॉटमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके शेयर्स प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में अगर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो फिर आपका पूरा जो ये IPO लाने में जितने सालों की मेहनत लगाई वो सब पानी में जाएगी. पूरे शेयर्स रिजेक्ट हो जाएंगे इफ़ यू कैन नॉट गेट इट रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. सो दिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क विच इज़ बीइंग गिवन टू CS. तो वो कंपनी सेक्रेटरी को दिया गया है. तो कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू वर्क वेरी नाइसली ऑन दिस. Alright, so this is how it is to be done. So these were certain duties. और ये question could also be asked in your एग्ज़ाम फॉर 3 मार्क्स. सी इन योर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आई से कि नहीं इसमें से नहीं आएगा या फिर इसको स्किप कर लेंगे या ये फिर नहीं आएगा. अनटिल एंड अनलेस कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है, वी विल बी डूइंग द फुल बुक एंड नो कॉर्नर वी आर गोइंग टू लीव. Okay, so each and everything is very important, so make sure that you revise all such things. Okay, up till this we are keeping everyone. I hope you have understood everything and come to this exercise and try to solve all such questions which are being discussed already. So exercise के जितने questions हैं, ये MCQs जितने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कुछ हैं, तो ये सारे अभी से ही सॉर्ट करना स्टार्ट कर दो सो दैट एक साथ लेसन कंप्लीट हो जाए तो एक साथ बर्डन ना आए. Alright, so I hope it is clear what is going on here. Alright, and we'll be discussing the next topics in the next class. Up till this we are keeping till this and we'll be meeting in the next class. Okay, so here we end everyone. Thank you for watching. Have a nice day ahead.